Hello everyone, I'm Dr. Mini Mehta and today we will discuss one very important topic. We will discuss about bladder complaints. You can check the story. I've shared a video of a girl who's suffering from some painful micturition, bladder incontinence. So let us today talk about bladder complaints. Let us discuss about how we can use our homeopathic therapeutics to cure, to heal, to help the patients suffering from bladder complaints. So first of all, we should revise what is bladder. So we are talking about urinary bladder. Urinary bladder is a muscular hollow organ which is placed just at the back of pubic bone and which is when empty is just as the size of a pear, and it has a capacity to store urine up to 4 to 600 ml urine, and when it is full, the bladder is full, it can rise up to the navel, high up the abdomen. So this urinary bladder, it has got three layers. First, the inner layer, which is a mucous membrane. Then the second layer, which connects the inner, which is between the inner mucous membrane layer and the outer muscular layer. And then the outer muscular layer, which is all the blood supplies, all the nerves. That muscular layer, durator muscle we call it. So whenever somebody has some problem in the bladder, there must be some problem with that muscle or in the mucous membranes or the glands which secrete mucus in the urinary bladder. So whenever there is a chronic irritation in the urothelial cells, in the mucous membranes, they form some villi-like structures. Chronic irritation and inflammation in that area causes cancer. Wherever there is a chronic irritation, it causes cancer. So, to prevent cancer, we have to rightly address the previous warnings when somebody starts having the bladder complaints. So, what are the different bladder complaints? Can somebody tell me what are the different bladder complaints? Cystitis, painful dysuria, anuria, incontinence, increased urge to go to the urinal to pass urine, tenesmus, increased frequency to pass urine. So these are all the bladder complaints. And involuntary urination. तो जब भी यूरिनरी ब्लैडर की कंप्लेंट्स होती है, लेट मी टॉक वेरी इन अ सिंपल लैंग्वेज, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आए दिन हमारे क्लिनिक में कितने पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बेड वेटिंग करता है बच्चा, और कोई बोलता है डॉक्टर साहब इस बच्चे को इतना ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। कोई बोलता है कि हमें जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमारे पेट में बहुत दर्द होता है। यूरिन पास करने से ही लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि इतना दर्द होता है उनको। Inflammation in the neck of the bladder or the urethra, or some urinary tract infection in the newlywed ladies, painful urination. So now let us discuss some therapeutics. So first of all, डिस्कस करते हैं हम एक मेडिसिन, मुझे याद आ रही है लाइसिन। हम बहुत सारा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन, एक किसी बात को डिस्कस करना हो तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स। हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं क्योंकि इतनी बातें, इतनी नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन के बारे में, उसे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन हर रेमेडी के जबरदस्त अंडरलाइंड है।
तो जहाँ तक मुझे अगर कुछ कुछ रेमेडीज़ के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन याद आ रहे हैं ब्लैडर कंप्लेंट्स में, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो देन आपको पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मेरी मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं कहीं पर पानी बहता हुआ सुनता हूँ कि नलके से पानी बह रहा है या कोई इधर से उधर पानी पोर कर रहा है, पोरिंग करने की साउंड है, पानी कहीं से गिर रहा है, या मैं गिरता हुआ बहता हुआ पानी देखता हूँ, तो मुझे उस वक्त यूरिन की अर्ज आ जाती है कि आई हैव टू पास यूरिन। दैट टाइम आई फील लाइक पासिंग यूरिन। लाइसिन इज द मेडिसिन। तो ये आप स्ट्रेट अवे लाइसिन नहीं दोगे, तो आपको एक इंडिकेशन मिला लाइसिन का, तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू कंफर्म लाइसिन। आप और कुछ सिम्टम पूछोगे, 4-5 और ढूंढोगे सिम्टम जो आपको कंफर्म करे कि आपने उसको लाइसिन ही देनी है या इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि नहीं। सेकेंड, हीपर सेल्फ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ब्लैडर कंप्लेंट्स में। जब पेशेंट आपको बोलता है डॉक्टर साहब, जब मेरे को यूरिन जाना होता है तो मुझे ऐसे लगता है ब्लैडर इज़ वेरी फुल, पर आई फियर कि मैंने ये यूरिन पास किया तो आई हैव टू वेट फर्स्ट। आई फील इट इज़ फुल बट यूरिन आता नहीं, आई हैव टू फर्स्ट वेट, देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इट सेल्फ। द यूरिन इज सो हॉट कि वो जहाँ पे गिरता है ना, अगर पेशेंट को पार्ट्स पे, इट स्कार्ड्स द स्किन, जला देता है। और पेशेंट कहता है, हीपोसेल्फ की खासियत है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब यूरिन का फ्लो ख़त्म हो जाता है तब भी आई हैव टू स्टैंड, क्योंकि द यूरिन कीप्स कमिंग आउट। और कैसे? एक तो आप प्रेशर से जब यूरिन पास करते हैं तो वो दूर जाता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक कहते हैं फ्लो बनती, एक प्रोजेक्टाइल फ्लो होती है, वो नहीं होती। हीपोसेल्फ पेशेंट की फ्लो बिल्कुल वर्टिकली ड्रॉप्स डाउन। तो ऐसे जब आप ऐसे कॉन्वर्सेशन में आपको पेशेंट से ऐसे सिम्टम मिलेंगे, तो हीपोसेल्फ इज द रेमेडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन ब्लैडर कंप्लेंट्स जो सबसे कॉमन है वो एपिस है। एपिस का पेशेंट बोलेगा कि उसको इतनी जलन होती है, बार बार उसको अर्ज होती है, जब यूरिन आता है तो 2-4 ड्रॉप्स ही आता है, बहुत डार्क ब्राउन या बहुत थिक येलो यूरिन आता है, बट इट्स सो बर्निंग। इतनी जलन होती है, इतनी उसको खुजली जलन होती है वहाँ पे कि वो 2-4 यूरिन आता है, लेकिन बार बार अर्ज होती रहती है और आता 2-4 बूंद ड्रॉप्स ही यूरिन आता है। और यू विल फाइंड दैट पेशेंट इज थर्स्टलेस, और दे कुड बी सम स्वेलिंग ऑन द फेस। और पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब, इतना जलता हुआ यूरिन आता है कि मुझे फटाफट से पानी से अपने यूरिनरी पार्ट्स को धोना पड़ता है, नहीं तो वो जलन जाती नहीं है, बहुत बहुत भयंकर जलन है। ऐसे यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी ब्लैडर कंप्लेंट्स के लिए, कैंथेरिस। कैंथेरिस का इंडिकेशन ये है कि जब पेशेंट को यूरिन आता है, उसको सीवियर कटिंग पेन होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन होती है, उसको ऐसे लगता है कि ऐसे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और फिर इतनी कटिंग पेन होती है, और फिर जाके ब्लडी थिक 2-1 यूरिन की ड्रॉप्स आती हैं, वो भी हॉट स्काल्डिंग, ब्लड लाइक यूरिन आता है। सिवियर इन्फेक्शन के केसेस में ऐसा होता है, बट आप एपिस और कैंथेरिस में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? यू वोंट फाइंड दी बेसिक जनरल सिम्टम्स ऑफ एपिस इन दैट, but in cantheris there is lot of burning pain which is not even better by washing the way it is better by washing in apis। तो hot scalding drops of urine आता है, bloody urine आता है कैंथेरिस के अंदर, and pain is severely cutting and severely contracting pain। And one more medicine, one more very important medicine for the bladder complaints is belladonna. Never forget, urination is so very painful. When patient goes to urinate, there is severe pain and only few drops pass, and suddenly the urge for the urination comes suddenly and goes suddenly, but there is severe pain, and also severe pain with it sometimes the urine is passed involuntarily, and there you will find that when you'll go for the checkup and patient will go for the checkup, they will find that there is paralysis of the sphincter vesicae in belladonna. So there is severe pain, patient has severe, suddenly the pain comes and goes, severe pain, only few drops of urine is passed, or urine is passed involuntary, but
suddenly there is severe pain. Next, for the bladder problems, there is a remedy, cannabis sativa. Cannabis sativa, you will see there is severe pain along the course of the urethra. पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरे बेस ऑफ द पेनिस जहाँ से शुरू होता है वहां से यूरेथ्रा में इतना दर्द होता है, इतना सीवियर पेन होता है जब मुझे यूरिन आता है, इतना मेरे किडनी रीजन में भी उसका बहुत पेन होता है, इतना सीवियर पेन आता है, और क्या कहते हैं, और वो थाइज में आगे जाता है, इतना ग्रोइंस में जाता है, पेन बहुत सीवियर होता है कि करंट जैसा आई फील वेरी हेल्पलेस, और फिर थोड़ा सा स्काल्डिंग हॉट यूरिन पास होता है मुझे. तो ये आपके इंडिकेशन है कैनबिस सटाइवा की. And cannabis indica also is a very good remedy for bladder complaints when patient says कि डॉक्टर साहब इतनी तेज दर्द होता है, यूरिन जब मेरा पास होता है तो वो जैसे ही पास होता रहता है तो उसके बाद भी जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है, फ्लो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद भी आई फील कि अभी और आ रहा है, और वो तब तक अपने आप ही ड्रिबल करता रहता है यूरिन. तो कि मेरे को उस ड्रिबलिंग को रोकने के लिए समटाइम्स मैकेनिकली मुझे अपने हाथ से ही आगे जो यूरेथ्रा है, जैसे मेल्स विल टेल यू कि दैट आई हैव टू क्लीन आउट द ग्लैंड्स फॉर द लास्ट ड्रॉप. Cannabis indica patient will tell you like this. And one more important symptom of cannabis sativa is that urine dribbles itself when the patient is sitting. And मतलब थोड़ा सा यूरिन ड्रिबलिंग करेगा जब पेशेंट बैठा हुआ है, बट जब पेशेंट खड़ा होगा तो यूरिन विल फ्लो फ्रीली. And there is one more remedy, sarsaparilla. It is also very good remedy which is given for the painful urination. And what is the indication for sarsaparilla? Patient will tell you कि जो पेन है वो जब मैं यूरिन कर लेता हूँ, खत्म कर रहा होता हूँ, जब यूरिन फ्लो खत्म होने वाला होता है तब ज़्यादा तेज हो जाती है, सिवियर हो जाती है. तो sarsaparilla is the remedy for that type of pain, and sarsaparilla is the suitable remedy for the people who have suffered from some sexually transmitted disease before, who have taken treatment for gonorrhea before, and sarsaparilla is the medicine for those ladies who have got some PID or urinary tract infection, and the main indication is that they feel immense pain at the close of urination. And next, you know that natramur cannot pass urine. Like if sometimes there's a lot of people in my clinic, females whom I prescribed natramur, they told me, they confirmed this symptom like this कि डॉक्टर जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आजकल आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं, तो जब घर में बहुत सारे लोग एक रूम में बैठे होते हैं, मान लो 5 लोग रिलेटिव्स आए होते हैं, देन इफ आई गो टू माई यूरिनल एंड ट्राई टू पास यूरिन, I feel very difficult to pass urine because when people are outside, it takes me time. I have to think something else or concentrate on something else. Then I start passing urine. So natramur is the remedy who cannot pass urine when there is someone, and also they feel pain after passing urine, not at the close of urine like sarsaparilla, after passing urine. And not least important medicine, very important medicine is Lycopodium. What is the strongest indication of Lycopodium? Lycopodium has when there is an urge and the bladder is full, he gets severe pain in the back and the abdomen, severe pain, unbearable, and as soon as he passes the urine, the pain vanishes. जैसे ही वो यूरिन पास कर लेता है, उस भयंकर दर्द जो उसकी पीठ का, कमर का और पेट का है वो चला जाता है. तो लाइकोपोडियम दवा देने से ऐसे व्यक्ति की प्रॉब्लम चली जाएगी. बहुत सारे लोग जो कैंसर की स्टेट में भी चले जाते हैं, ऐसा लक्षण आपको मिल जाएगा. यदि मिल गया तो उसकी किस्मत चमक गई. ही कैन गेट बेटर विद दैट मेडिसिन. एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, पेनफुल यूरिनेशन, इंक्रीज अर्ज, एवरी 15-20 मिनट्स पेशेंट वांट टू गो फॉर यूरिनेशन. बार बार उसको थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करना है.
बड़ा एंशियस पेशेंट होगा, फास्ट टॉकर होगा, डॉक्टर साहब मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, आप मेरे को जल्दी से कोई रेमेडी दे दो, क्योंकि पता है क्या है, ऐसा है कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरी सर्जरी हो जाएगी, ये तो बहुत बात हो जाएगी, फिर इससे तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाऊंगा. He'll talk like this, and he will have increased frequency urge and frequency to pass urine. So for those people, you will confirm not just with the one indication, you have to confirm the indication. Like अगर आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम का इंडिकेशन मिल रहा है तो उसके और जो उसके मेन की नोट सिम्टम्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लुक फॉर दैट इन द पेशेंट, एंड इफ यू गेट इट, हिट इट. सो नेक्स्ट बहुत कॉमन चीज़ है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उनको. छोटे बच्चे भी आते हैं और बड़े बूढ़े भी आते हैं जिनको इनकॉन्टिनेंस होती है या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होती है. तो बच्चों का तो हम ऐसे करते हैं कि देखते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई उन बच्चों को हम क्रियोसोट देते हैं जो बच्चे जैसे सोए अभी, अपने सोने के पहले 2 घंटे के अंदर इतना सारा यूरिन पास कर देते हैं कि पेरेंट्स और ना उठते हैं, गीले रहते हैं और सोते रहते हैं. पेरेंट्स उनको हिलाते हैं, उठाते हैं, या उनको खड़ा करके कपड़े चेंज करने के लिए भी खड़ा करते हैं, तो वो कहते हैं ये डॉक्टर साहब इतनी गहरी नींद में सोया होता है, इतनी गहरी नींद में सोई होती है कि इससे पता भी नहीं चलता कि कब हम इनके कपड़े बदल देते हैं. जबकि सीपिया और पल्सेटिला, दे ऑल्सो पास यूरिन आफ्टर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ देयर स्लीप, व्हेन दे स्लीप, बट दे आर इजीली अरोज्ड. उनको उठा लिया, आराम से उठा दिया जाता है तो बच्चा कंसर्न होता है, ठीक है ना, उसे पता चलता है. पल्सेटिला का तो स्फिंक्टर वीक होता है, वो तो जैसे ही सोती है देन शी लूजेस हर कंट्रोल. सीपिया के भी मसल्स वीक होते हैं, ब्लैडर मसल्स पे कंट्रोल उसका पुअर होता है. तो ऐसे बच्चों को जो बेड वेटिंग करते हैं हम देते हैं सीपिया, पल्सेटिला, क्रियोसोट उनको देते हैं. दांत खराब रहेंगे उन बच्चों के, सारे आगे के टीथ खराब रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, बोलेंगे वो देखोगे आपकी उसको कैविटी है, एंड यू विल फाइंड कि उनको यूरिन में इचिंग भी बहुत होती है. और आप बच्चों से, बहुत सारे बच्चे आपको ये भी बताएंगे कि मुझे पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं सपने में देख रहा होता हूँ कि मैं टॉयलेट ही जा रहा हूँ यूरिन करने, पर एक्चुअल मुझे पता ही नहीं होता कि मैं बेड में कर रहा हूँ. ठीक है. एंड चिल्ड्रन हु आर वेरी फियरफुल, या जिनके घर में बहुत गुस्सा करते हैं, उन बच्चों को भी सपने में कुछ कुछ ड्रीम्स चल रहे होते हैं, दे ऑल्सो पास यूरिन. तो ऐसे बच्चों को भी आप सैलरी टाइप देख के कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के मेडिसिन दोगे, वो भी हेल्प करता है. तो पल्सेटिला इज ऑल्सो गुड मेडिसिन फॉर इंक्रीज अर्ज ऑफ यूरिनेशन आफ्टर लाइंग डाउन एट नाइट. बड़े लोगों में लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब सारा दिन में इतनी अर्ज नहीं होती मुझे यूरिन जाने की, पर रात को मैं जैसे ही लेटती हूँ, जैसे ही लेटता हूँ, मेरे को एक बार यूरिन तो जाना ही है 1-2 बारी. तो पल्सेटिला इज द रेमेडी फॉर देम. और वो बोलते हैं अगर हम यूरिन जाने में ज़रा देरी कर दें तो वो हो सकता, वो ऐसा लगता है कि निकल ही जाएगा. पल्सेटिला इज द रेमेडी फॉर देम. ओके. और इग्नेशिया हम देते हैं उन लेडीज़ को जिनको दिन में मल्टीपल टाइम्स यूरिन जाने की अर्ज होती है, एंड व्हेन दे गो टू पास यूरिन, they don't pass scanty urine, they pass good quantity of clear urine. It is suitable for the hysterical women. They had multiple times they go for urination and they pass very clear urine. And one very important remedy for this bladder complaint is Chimaphila. Chimaphila is given to the patients जिनको यूरिन पास करने में इतना इमेंस पेन होता है कि यूरिन का प्रेशर बनाते ही बनता नहीं है, और उनको कि थोड़ा और निकल जाए, थोड़ा और निकल जाए, वो धीरे धीरे ऐसे पोजीशन ऑप्ट कर लेते हैं कि दे हैव टू मेक देयर लेग्स वाइड अपार्ट, दोनों टांगे दूर खड़ी करके जैसे बेंड करते हैं आगे की तरफ, तो जाके उनका यूरिन जो है निकलता है. ऐसे पेशेंट्स जो इस पोजीशन को बना लें, आपको डॉक्टर कैसे बताएंगे डॉक्टर साहब मैं यूरिन जाता हूँ ना, मेरे लिए यूरिन पास करना आसान नहीं है, मैं आगे से कुछ सहारा लेकर के झुक के दोनों पैर इतनी दूर करके जब खड़ा होता हूँ तो मेरा यूरिन पास होता है. ऐसे लोगों को हम मेडिसिन देते हैं चीमाफिला. चीमाफिला इज द मेडिसिन फॉर दोज पीपल. और ऐसे बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में यूरिन पास होता है जिंकम मेट को. जिंकम मेट पेशेंट विल टेल यू कि डॉक्टर साहब मेरे को यूरिन पास करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि मेरे को अंदर से स्क्वीज कर करके यूरिन की एक एक ड्रॉप निकालनी पड़ती है. कि कभी वो क्या करता है, इतना पीछे को झुकता है और दम लगाता है बैठ के यूरिन निकालने को,
या कभी वो, क्योंकि उसको अर्ज, जैसे वो यूरिन पास करने जाता है तो अर्ज नहीं आती, जैसे ही व्हेन ही सिट्स डाउन, सिटिंग पोज में उसको अर्ज होती है कि शायद यूरिन आएगा. सो व्हाट ही ट्राइज टू डू, ही क्रॉसेस हिज लेग्स टुगेदर एंड देन ट्राई टू पुश कि भाई यूरिन आने लगे, एंड देन ही रशेस टू द वॉशरूम एंड वो पीछे अच्छे से बेंड होके यूरिन जो है स्क्वीज आउट करने की कोशिश करता है. जिंकम मेटालिकम इज द रेमेडी फॉर दोज पीपल. अब बारी आई सीपिया. सीपिया हम उन लेडीज़ को देते हैं, उन उन ज़्यादातर लेडीज़ को देते हैं जिनको ब्लैडर प्रॉब्लम्स होती है, बार बार फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन पास करने की. किस वजह से? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस. उनके जो लिगामेंट्स होते हैं ना लोअर एब्डोमेन में, वो वीक हो जाते हैं. दे आर अनेबल टू होल्ड द यूट्रस इन द राइट प्लेस. तो वो यूट्रस जो है ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बनाती है, और जैसे ही थोड़ा सा अभी ब्लैडर उनका भरता है तो उनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. एंड ऑल्सो इन लेडीज़ को जो है बहुत जल्दी जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. तो जो यूरिन होता है वो इनका ब्राउनिश कलर का ऑफेंसिव यूरिन होता है. फिश, इतना स्मेल आता है कि मतलब कि अगर ये, जैसे हम तो आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुत ऑफेंसिव यूरिन होता है आपका नाइट्रिक एसिड का, लैकेसिस का, लेकिन सीपिया का भी यूरिन बहुत ऑफेंसिव होता है, ब्राउन होता है. अगर फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग इफ यू सी, तो यू विल फाइंड कि इट हैज़ लाइक क्ले लाइक सेडिमेंट्स इन इट. तो ऐसा सीपिया का यूरिनेशन होता है. और हमने देखा है, सब लोग जानते हैं कि लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है जेंट्स के कंपैरिजन में. वाई? क्योंकि जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है ना, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की जो लेंथ है आगे जो जिस जहाँ से हमने एक्सपेल करना है, जेंट्स की वो 6 सेंटीमीटर है और फीमेल्स में 1.5 है. तो किसी भी बैक्टीरिया का अंदर इजीली ट्रेवल करना फीमेल्स में इजी हो जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा इन्फेक्शन जो है अंदर तक ट्रेवल कर जाता है. तो सीपिया, मोस्ट ऑफ द लेडीज कमिंग टू यू विद सिवियर पस इन यूरिन रिपोर्ट लेके आएंगे और बहुत इन्फेक्शन होता है. सीपिया मेडिसिन देने से बहुत लेडीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और ऐसे ही आपके पास और लेडीज़ आएंगी जो न्यूली वेड होंगी या जिनके अभी कोई अबॉर्शन हुआ है, तो उन लोगों को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है. सारा टाइम बहुत हीट रहती है, इचिंग रहती है, बहुत बर्निंग रहती है. एवरी टाइम जब वो यूरिन पास करने जाते हैं उनको स्टिचिंग सी पेन होती है और साथ साथ ऐसे लगता है कि कोई घाव है, तब वो यूरिन पास करते हैं. तो ऐसी लेडीज़ को आप स्टेफिसिगेरिया दे सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर स्टेफिसिगेरिया. Yes, it is very important again to confirm with this indication. You can confirm for more pointers for Staphylococcus, then only you have to give Staphylococcus. और जेंट्स में आपको स्टेफिसिगेरिया इतना अच्छा वर्क करता है. वो लोग जिनको यूरिन पास करने में बहुत सिवियर पेन होती है, रुक रुक के आता है. जैसे मान लो पेशेंट आपको बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे मल्टीपल ऑपरेशन हुए हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर के ऑपरेशन हुए हैं बहुत सारे. तो उस टाइम पे जब मेरे को ये कैथेटर लगाते थे तो मेरे को यूरिन बैग, वो कैथेटर खिंच जाता था, उसकी वजह से बहुत पेन है. जब से मैं आया हूँ वो कैथेटर रिमूव हुआ है. एवरी टाइम आई पास यूरिन आई फियर आई सफ़र सिवियर पेन. तो उन लोगों को अगर हम स्टेफिसिगेरिया देंगे तो हो सकता है कि उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो बेटर हो जाए. और क्या है, और हम कैसे कंप्लेंट्स होती हैं तो उसको हम दे सकते हैं. और रेमेडी इक्विस्टियम है. अगर कोई रीज़न नहीं मिल रहा है खास कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रहा है, तो आप वो मेडिसिन दे सकते हैं इक्विस्टियम. तो ब्लैडर पैरालिसिस के लिए कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है जनरली छोटे बच्चों में या बड़ों में, तो ये मेडिसिन काफ़ी हेल्प करती है. और नक्स वोमिका, हाउ कैन वी फॉरगेट नक्स वोमिका. जब भी लोग बहुत सारा एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं, जब भी लोग व्रत के दिनों की बात करूँ तो बहुत सारे कुट्टू के आटे का बड़ा सामान मिला के गर्म तासीर वाला खाना खा लेते हैं. तो उनको जब शरीर में गर्मी हो जाती है एलोपैथिक मेडिसिन खाने से, बहुत सारा बिना पूछे आयुर्वेदिक ओवर मेडिसिन खाने से, जब यूरिन में जलन होने लगती है, मसाला वसाला स्पाइसेस खाने के बाद बार बार यूरिन आता है, जलन होती है, जलता है, जाता है, थोड़ा सा यूरिन आता है, इंक्रीज अर्ज होता है, साथ में इतना पेन होता है कि पेन के साथ उल्टी आने लगता है, तो मेडिसिन नक्स वोमिका देना है. वर्क करेगा ही करेगा डेफिनेटली. और ऐसा ही हाल जिसमें बहुत सिवियर दर्द हो और उल्टी आ जाए, इतना दर्द है, इंक्रीज अर्ज हो, ऑक्सीमम कैन इज द रेमेडी. बहुत अच्छी रेमेडी है.
आप इसको पढ़ोगे, ऑब्वियसली 4-5 उसके और सिम्टम्स जो हैं, पॉइंटर्स है, कंफर्म करोगे एंड यू कैन गिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स एंड दे विल डेफिनेटली फील रिलैक्स्ड। मर्क कॉर का पेशेंट क्या बताएगा आपको, डॉक्टर साहब इतना जलता है, इतना स्काल्डिंग है, रेक्टम में भी और यूरेथ्रा में भी बहुत जलता है, एकदम हीट रहता है, इतना पेन, बर्निंग पेन है। और जो मर्क कॉर का पेशेंट है वो यूरिन जो पास करता है उसके अंदर ऐसे म्यूकस और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मांस के टुकड़े उसके अंदर आ रहे हो, इतना ऐसा वो यूरिन होता है, डार्क कलर का। और अगर आपको ये दिखे कि पेशेंट को बहुत पेन है, जॉइंट पेन है और उसका यूरिन ब्राउन कलर का है, उसकी रिस्ट में भी पेन है, एंकल्स में भी पेन है और उसको गाउट की तकलीफ है और ब्राउन यूरिन आ रहा है, इंक्रीज अर्ज हो रही है, बहुत पेन के बाद आ रहा है, तो आप ऐसे पेशेंट को एसिड बेंज भी दे सकते हैं। बेंजोइक एसिड का ये सिम्टम है, जॉइंट पेन इन रिस्ट, इन एंकल्स, स्कैंटी ब्राउन यूरिन, यू कैन गिव एसिड बेंज। और कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना दर्द है किडनी रीजन में, हमारे लॉइंस में इतना दर्द है, एवरी टाइम आई गो टू पास यूरिन आई पास ओनली स्कैंटी इंक लाइक यूरिन, जैसे कि शाई हो, ऐसा रंग है उसके अंदर जैसे कोई शाई हो, ब्राउन रेडिश या डार्क, ऐसी शाई हो, इंक लाइक यूरिन मेरे को आता है जैसे कि कोई इंक हो। तो ऐसे में आप पेशेंट को और कंफर्म करोगे, अगर पूछोगे तो अच्छा और बताओ तो क्या कि भूख कैसा है, वो कहे भूख तो ऐसा है, भूख तो लगता है पर जैसे ही खाना आता है मेरे को उल्टी का सेंसेशन होता है खाने की स्मेल से। तो ऐसे लोगों को क्या मेडिसिन देंगे आप, कॉल्चिकम ऑटम नेल का इंडिकेशन है क्योंकि एवरी टाइम यू कैन गिव इट टू देम। ठीक है, अब एसिड फॉस भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये उन लोगों को दी जाती है जिनको बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता है और जब यूरिन आता है तो वो ऐसा यूरिन होता है कि जो इट फील्स कोल्ड ऑन पासिंग, ऐसे लगता है पेशेंट को कि बड़ा ठंडा सा यूरिन पास हो रहा है और उसके अंदर जो है वाइट चॉक लाइक सेडिमेंट्स होते हैं, वाइटिश आता है, बिल्कुल म्यूकस वाइटिश रहता है उसके अंदर। ठीक है, और फाइटोलका का जो यूरिन होता है वो भी वाइट इन कलर होता है। अगेन सो यू हैव टू कंफर्म फाइटोलका बाय आस्किंग मोर क्वेश्चंस टू द पेशेंट्स कि आपको थायराइड तो नहीं है, आपको कैसे ग्लैंडुलर स्वेलिंग तो नहीं है, देन ओनली यू विल गो फॉर दैट रेमेडी। आपको पता है ना व्हाट डू वी कॉल वाइटनेस इन द यूरिन, उसको हम क्या बोलते हैं, काइल्यूरिया। ये बीमारी होती है, पेशेंट ऐसा बिल्कुल दूध जैसा मिल्की वाइट यूरिन पास करता है, उसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है आपका एसिड फॉस दी जाती है, आपको फाइटोलेका बताई है मैंने, और मेडिसिन सिना इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। आपको पेशेंट बताएगा, पेशेंट बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो उसके मदर बताए कि डॉक्टर साहब जब ये बच्चा यूरिन पास करता है तो मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो सारा जो यूरिन है ऐसे लगता है कि जैसे जम गया सफ़ेद सफ़ेद वहाँ पर। तो ऐसे ये सिना का बहुत अच्छा इंडिकेशन है, आप सिना दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और लेक्सिस का इंडिकेशन है जब किसी को ब्लैडर कंप्लेंट से बहुत पेनफुल यूरिनेशन होगा, बहुत दर्द होगा, मिडल ऑफ द नाइट में सो रहा है आदमी, एकदम से जागेगा, एकदम दर्द होगा उसको बहुत किडनी एरिया में, और यूरिन के लिए जब जाएगा तो वेरी डार्क कलर्ड ऑफेंसिव यूरिन होगा, उसको बहुत ही स्मेल होगा उसके अंदर, बिल्कुल डार्क कलर्ड होगा वो यूरिन विद सम ब्लड, इट कुड बी विद सम ब्लड। तो ऐसे लोगों को आप उस ऑफेंसिव यूरिन के लिए, डार्कनेस के लिए, सडनली विच वेक्स दैट पेशेंट अप इन द नाइट, और कंफर्म करो लेकिसिस के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पॉइंटर्स इंडिकेशन है ये, आप लेकिसिस दोगे तो भी पेशेंट बेटर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कॉमन रेमेडी जो है क्या है, वो हमारी बर्बरिस। इट हैज़ रेडिएटिंग पेन द लेफ्ट साइड, किडनी एरिया से चल करके लेफ्ट यूरेथ्रा को क्रॉस करके वो यूरिन आगे थाई तक आएगा, प्लूरल नर्व न्यूरैल्जिया भी दे सकता है वो आपको। तो अब ऐसे पेशेंट को ऑब्वियसली हम बर्बेरिस देंगे। ठीक है, और क्या कंप्लेंट्स होते हैं लोगों को ब्लैडर के, जिनको लोग आदत डाल लेते हैं अपनी लाइफ में, सोचते हैं कि अब इसका क्या इलाज कराएं क्योंकि एलोपैथिक में तो इसका इलाज है ही नहीं। जैसे एलोमेना पेशेंट आपको क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब कि मेरे को जो है ना अगर यूरिन पास करना है तो मेरे को स्टूल के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, आई हैव टू स्ट्रेन ऑन पासिंग स्टूल।
तब जाके मेरे को यूरिन पास होता है। ये एल्यूमिना की कहानी है, उसका ये इंडिकेशन है। और एलोज क्या बोलेगा आपको? एलोज बोलेगा कि जब भी मैंने यूरिन पास करना है मुझे मोशन पास हो ही जाएगा थोड़ा सा। ये एलोज का इंडिकेशन है। अब आप उसको और अच्छे से कंफर्म करेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसको एलोज देना है कि नहीं। अब कोनियम की क्या, कोनियम भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है ब्लैडर कंप्लेंट्स में। उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है, मेल्स को ज़्यादा अच्छे से देते हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आई फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम, मैं वहाँ जाता हूँ, खड़ा होता हूँ, जैसे यूरिन पास होता है फिर रुक जाता है एकदम से, फिर थोड़ी देर हमको खड़ा होना पड़ता है, फिर थोड़ा सा यूरिन होता है, फिर इट स्टॉप्स अगेन एंड देन इट फ्लोज अगेन। उसको लगता है जैसे बीच बीच में कोई बबल आ जा रहा है, या जो पाइप है जिससे यूरिन आ रहा है वो बंद है, खुलता है, तो रुक रुक के यूरिन आता है। कोनियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। साथ में पूछो कि आपको कभी चक्कर भी आता है, आप उनको पूछो, उनका प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कराओ और सब चेक करो, प्रोस्टेट की ट्रबल है और सब बातें पूछो, कंफर्म करो कोनियम का सिम्टम, और कोनियम दो। स्टेफिस को भी प्रोस्टेट की ट्रबल की वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है मेल में, बार बार यूरिन जाने का अर्ज होता है, और या कभी इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो अब स्टेफिस भी बहुत अच्छा मेडिसिन है उसके लिए। और कौन सा मेडिसिन रह गया यूरिन के प्रॉब्लम्स के लिए? अब आप देखो बोरेक्स कितना अच्छा मेडिसिन है। बोरेक्स जो बच्चा है उसको जैसे ही यूरिन आएगा वो चिल्लाने लगेगा पहले ही, मम्मा जल्दी आ जाओ, मेरे को यूरिन आ रहा है, बहुत मिर्ची वाला आ रहा है, सुई चुभ रही है, सुई चुभ रही है। दिस वे द बोरेक्स चाइल्ड विद शाउट कि मुझे सुई चुभ रही है यूरिन पास करने में, दिल होल्ड योर हैंड एंड देन पास यूरिन। तो बोरेक्स इज अ वेरी गुड रेमेडी, स्पेशली फीमेल चाइल्ड जब है तो आप उसको बोरेक्स दोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जब यूटीआई होता है, एपिस और बोरेक्स बहुत अच्छी रेमेडी है। उनको सुई सुई चुभने जैसा फील होता है, म्यूकस पास होता है थोड़ा सा, ऐसे बच्चों को आप बोरेक्स दोगे तो उनको बेटर लगेगा। अब आपको जैसे मैंने सीपिया बताया कि सीपिया को ऐसे कंप्लेंट्स रहता है, ब्लैडर पे प्रेशर रहता है यूट्रस की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन होता है, ऐसे म्यूरेटिक एसिड इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। उसमें क्या होता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को इतना जोर लगाना पड़ता है, मेरे को यूरिन की इतनी प्रॉब्लम है कि कई बार इतनी रिटेंशन हो जाती है, मुझे जोर लगाना पड़ता है कि मेरा रेक्टम प्रोट्रूड हो जाता है, इतना जोर लगा लगा के मुझे अपना ब्लैडर एम्प्टी करना पड़ता है कि मेरा रेक्टम प्रोट्रूड हो जाता है। ऐसे लोगों को हम एसिड म्यूर देते हैं। एसिड म्यूर इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दोज पीपल। ठीक है, और ब्लैडर की प्रॉब्लम्स में और कौन सी दवा रह गया? हमने काफ़ी सारी तो डिस्कस कर ली है। और ब्लैडर कैंसर हो जाता है कितनी बार, ब्लैडर में पॉलिप्स हो जाते हैं। मैं इसकी डिटेल में तो जाऊंगी नहीं कैसे, लेकिन ब्लैडर कैंसर के लिए, ब्लैडर कैंसर की केसेस में टैरेक्सिकम मदर टिंचर बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं राइट इंडिकेशन पे। और ब्लैडर में जब पॉलिप्स हो जाते हैं तो कैलकेरिया कार्ब इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट, पीपल फॉलो इट। लेकिन अगेन इंडिकेशंस के बेसिस पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फाइंड आउट कर लेते हो, नथिंग इज बेटर देन दैट, दैट इज द रेमेडी विच इज गोइंग टू हेल्प द पेशेंट आउट। और अगर आपको पेशेंट मिले कि जिसको बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रॉब्लम होता है और गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम होता है, और यूरिन उनका एकदम येलो होता है, येलो जैसे हल्दी का पानी होता है। अगर दिख रहा है आपको किसी का यूरिन हॉट एंड येलो लाइक कि ये है हल्दी का पानी, तो चेलिडोनियम इज द रेमेडी फॉर दैट। नथिंग इज बेटर देन चेलिडोनियम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज पेरेरिया ब्रावा। पेरेरिया ब्रावा इज अ रेमेडी। जब आपको पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब मैं यूरिन पास करने जाता हूँ तो मुझे इतनी पेन होती है कि ये पेन जो है मेरे थाइज में आगे ट्रेवल करती है, मेरे ग्रोइंस में फील होती है, मुझे पूरे लेग के अंदर वीकनेस फील होता है मेरे को, तो आप ऐसे केस में ये एक पेरेरिया ब्रेवा का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप इसको अच्छे से पढ़ के इसके और जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कंफर्म करके ये मेडिसिन दे सकते हैं अपने पेशेंट को। और अगर आपको पता है, अगर ये जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन
इरिटेट बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ब्लैडर की कंप्लेंट्स इसीलिए आती हैं क्योंकि किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई एक्यूट कंप्लेंट होती है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि किडनी में स्टोन्स होते हैं, व्हेन दे पास थ्रू द ब्लैडर समटाइम्स दे मेक इट कॉज सम इन्फ्लेमेशन, कभी इंजरी हो जाता है, कभी स्क्रैच हो जाता है। इससे ब्लैडर में क्रॉनिक इरिटेशन प्रोड्यूस हो सकता है। और कोई ऐसी चीज़, कोई कुछ पॉइजनिंग हो जाए या कोई चीज़ ऐसी दवाइयाँ, केमिकल्स खा लेते हैं लोग, ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसमें किडनी टॉक्सिन रिलीज कर रही हैं जो ब्लैडर से होके जा रही हैं, वो ब्लैडर को हार्म कर देती हैं। और हाँ, जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि जैसे जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी लेते हैं, तो स्पेशली कीमोथेरेपी में एक मेडिसिन होती है साइक्लोफॉस्फाइड, जिससे वो कीमो देते हैं। उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इट कॉजेज ब्लैडर कैंसर, तो इट कॉजेज इरिटेशन इन द ब्लैडर। तो अगर आपको पेशेंट इनमें से दवाइयों में से कोई भी ऐसे इंडिकेशन देता है, आप उसको कंफर्म करके अगर उसको राइट टाइम पे मेडिसिन दे के यू हेल्प द पेशेंट, यू कैन सेव दैट पेशेंट फ्रॉम गोइंग इनटू अ डेंजर जोन लाइक कैंसर। और हाँ, उन पेशेंट्स को भी ब्लैडर की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं जो कीमो के बाद रेडियोथेरेपी लेते हैं। जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, तो अगर पेशेंट ने सर्जरी करा ली और लिम्फ नोड्स हैं, तो उसके बाद उनकी बहुत बड़ी रेडियोथेरेपी होती है। तो रेडिएशन थेरेपी की वजह से उस एरिया में ब्लैडर में सबसे ज़्यादा कैंसर आता है, सबसे ज़्यादा इरिटेशन होते हैं, इररिपेरेबल लॉसेस, इररिपेरेबल इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्लैडर के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप अच्छे से यू नोट डाउन द सिम्टम्स एंड लुक फॉर द राइट इंडिकेशन फॉर द राइट मेडिसिन। अभी मैं बहुत थोड़ा ही आपके साथ शेयर कर पाई हूँ जितना मुझे याद है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत स्कोप है। आर्सेनिक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन, जिसमें स्कैंटी ब्लडी यूरिन पास होता है। बहुत बर्निंग होती है पेशेंट को, और वो बर्निंग जो है उसको ठंडे पानी से धोने से अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा वो पानी गर्म करके अगर तसले में वो बोलेंगे कि हम बैठते हैं या गर्म पानी से धोते हैं तो हमें बेटर लगता है, रेस्टलेस होता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट्स को आर्सेनिक अच्छा लगता है, आर्सेनिक से बेटर लगता है। और बहुत सारे पेशेंट्स जिनको निमोनिया हो जाता है, तो अगर वो बहुत सारी मेडिसिन अगर एलोपैथिक के ले रहे होते हैं तो उससे उनको पेनफुल यूरिनेशन भी शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट पासिंग, निमोनिया भी है पेशेंट को, एंड दे स्टार्ट पासिंग डार्क स्कैंटी रेड यूरिन। और इफ यू देन यू सी द टंग, पेशेंट इज हैविंग ए थिक व्हाइट कोटेड टंग, एंटिन टार्ट इज अ वेरी गुड रेमेडी जो आप दे सकते हो। और एकोनाइट तो हमारी है ही, किसी को एकदम डर गया कोई कुछ एक्सीडेंट देख के, कोई बात से डर गया और उसका यूरिन रिटेंशन हो गया, बहुत पेन हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन स्काल्डिंग हो रहा है, रीजन डर था, तो रेमेडी एकोनाइट जाएगी। अगर किसी को दोबारा अगेन ड्यू टू फियर, सम फियर, कोई भूत देख लिया ऐसा डर हो गया, या एक बच्चा है वो फीड ले रहा है और मदर उसकी डर गई है और चिल्लाई, बच्चा डर गया और उसके बाद यूरिन रिटेंशन हो गया, go and confirm more symptoms. OPM is also a very good remedy. And one more, अब मुझे कहते कहते याद आ रहा है, तो जेलसीमियम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिन रिटेंशन के लिए। वो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं जितना पानी पीती हूँ ना उतना मुझे यूरिन पास नहीं होता है, तो मैं इसलिए पानी ना कम पीती हूँ, फिर क्योंकि इतना यूरिन पी लेती हूँ पास होता नहीं, मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो ये लोगों का सर में दर्द रहता है, जैसे ही इनका फ्री फ्लो होता है यूरिन का, तो इनके हेड एक में बहुत रिलैक्स फील होता है। ये लोग बीपी के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, इनका बीपी हाई जो होता है, यूरिन इनका कम आ रहा होता है, प्यास इनको लगती नहीं है, और ये बोलते हैं पानी हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि फिर यूरिन नहीं आता तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, पानी रिटेंशन हो जाती है। पर क्लियर यूरिन फ्लो करता है तो इनके हेडेक में बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। ऐसे लोगों को आप जेलसीमियम दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे जितनी नॉलेज थी तो मैंने उसके हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया। थेरेपेटिक्स, होम्योपैथी इज़ वेरी गुड, वेरी वास्ट, और बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। ये तो बस एक सिंपल सा कहते हैं ना कि एक ट्रेलर वाली बात है कि हमने एक रिमाइंडर डाल दिया। आप आज ये डिस्कस करने के बाद अपनी बुक खोलोगे, पढ़ोगे तो आपको हो सकता है और कुछ भी पता चले। So, but believe me, homeopathy can help people in a very better way if we get the right indication from the patient at the right time. We can do the very best
for the people in need, for the patients. So my homeopathic friends, thank you very much for watching me. Happy Dashera.